In this video, I'll discuss a protocol called Needham and Schroeder protocol that is used for sharing the session keys on the channel. First of all, this protocol uses KDC, that is a key distribution center. KDC is a third party which is authentic. इंट्रूडर इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी बट उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. KDC इज अ गुड पार्टी, गुड थर्ड पार्टी which is used for authentication. And in this protocol we are going to share the session key between Alice and Bob using this party, that is key distribution center. Now it uses symmetric encryption. Now the concepts used in this protocol are always using symmetric encryption. That means the same key is being used at the sender as well as the receiver side. Next is KDC shares a symmetric key between all users. Beforehand, KDC must share a symmetric key between all its users, and these keys will be different from user to user. For example, the key between Alice and KDC, let's say KA, and key between KDC and Bob, let's say KB, both should be different and only known to the intended user and KDC. Now this protocol uses for authentication also. It also authenticates that the intended user is what he pretends to be, is not somebody who is masquerading. That means कि जो बोल रहा है एलिस ही है, बॉब या इंट्रूडर उसको masquerade नहीं कर सकता. Now इसका मेन पर्पस क्या है? इस प्रोटोकॉल का पर्पस इज टू शेयर अ सेशन की. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन की वर्सेस सिमेट्रिक की? अब हमने यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ करी हैं. वन इज सेशन की एंड अदर इज सिमेट्रिक की. सेशन की का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के लिए, जस्ट टाइम बीइंग. फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट के लिए, दैट इज अ बेटर वर्ड. टाइम स्लॉट फॉर एग्जांपल एक बार ही जो सेशन हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को हम कहते हैं एक सेशन. तो उसके लिए अगर की यूज़ करनी है तो होगी सेशन की. सेशन की हमेशा बदल जाएगी. फॉर द नेक्स्ट सेशन देयर विल बी सम अनदर की. बट सिमेट्रिक की क्या है? सेम की दैट इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्ग पर्पसेस. वो बार बार चेंज नहीं होगी विद द सेशन. तो सेशन की एक टेम्परेरी की होती है जो सिमेट्रिक होगी इन दिस केस, and उसको हम शेयर करेंगे between Alice and Bob. Now the description of the same protocol. Needham and Schroeder protocol used for secret key distribution using KDC. तो we have to distribute a key session key जिसको हम बोलेंगे secret key, किसके यूज़ करके? KDC को यूज़ करके. Now it is very simple. We'll understand with this diagram. There are 5 steps in this. There are 3 actors. 3 एक्टर हैं हमारे पास. एक है एलिस, दूसरा है KDC, थर्ड इज बॉब. नाउ एलिस वांट्स टू टॉक टू बॉब over an insecure channel, and Alice and Bob are talking for the very first time. उनको की नहीं पता है. So now Alice will go to the KDC and will ask for the KDC for the session key or secret key. Now initiator A, Alice, let's say, has sent one message to KDC. In that message, Alice has said that my ID is this, and ID of B and nonce. N is nonce here. Nonce is a random number. These are basically used to avoid the replay attacks. What is replay attack? Basically कि intruder इस पैकेट को सेव करके बाद में प्ले ना कर दे, उसलिए we are putting some random numbers, and every time we are going to change these random numbers so that KDC must know कि which messages are the fresh one and which one is the old copy of the previous one. So A will simply say this is my ID, unique identifier of Alice, then that next is a unique identifier of Bob, and the nonce is a random number. Now the KDC will create a packet for Alice. In that packet, KDC also concatenate the packet for the Bob. Now this is the only point that you need to understand, otherwise this is very simple. KDC has created one envelope. In one message, KDC has created another envelope that is being packed in the big one, and that is for the Bob. पहले में उसने क्या लिखा है? पहले में उसने लिखा KS,
दैट इज द सेशन की या द सीक्रेट की या द टेम्परेरी की, जो कि KDC की जनरेट करेगा, रैंडम की होगी, वो रैंडम की एक जनरेट करेगा, उस रैंडम की के साथ कंकैटिनेट कर देगा ID ऑफ A, ID ऑफ B एंड नॉन्स 1 जो इसने भेजा था, साथ में कंकैटिनेट करेगा और अपेंड क्या करेगा इसमें, एनक्रिप्टेड विद KB। नाउ KA और KB क्या है, KA इज़ द सीक्रेट की शेयर्ड बिटवीन LS एंड KDC, KB इज़ द की शेयर्ड बिटवीन बॉब एंड KDC। सो KA का सिर्फ LS को और KDC को पता है, KB के बारे में बॉब को और KDC को पता है। इन दिस केस ID, ये तो उसने सेम मैसेज उसका लिख दिया, मेन थिंग इज हियर इज KS उसने बता दी कि दिस इज़ द रैंडम की, दिस इज़ द टेम्परेरी की। अब जो बॉब के लिए ये कंकैटिनेटेड क्या है, एनक्रिप्टेड विद KB क्या है, बॉब को पता है या KDC को पता है, एलिस को नहीं पता है। उसके अंदर क्या, उसके साथ एनक्रिप्ट क्या किया, सेशन की, दैट इज़ KS, वो सेम सेशन की एंड ID ऑफ A, साथ में बता दिया कि ये वाला ID, ये वाला पर्सन वांट्स टू टॉक विद दिस पर्टिकुलर की, और वो इनक्रिप्ट किया है बॉब की के साथ। तो एलिस को ये वाला पर्टिकुलर मैसेज समझ में नहीं आएगा, लेकिन KDC ने ये भेजा एलिस को ही है। उसने ये एलिस को क्यों भेजा, उसके दो पर्पस हैं। फर्स्ट, अगर KDC ये सीधा बॉब को भेजता तो इंट्रूडर, KDC को नहीं पता कि शायद इंट्रूडर ये मैसेज कर सकता है, इंट्रूडर कैन ऑल्सो से आई एम एलिस। यहाँ पे उसने ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड किया है, उसने ये सारा मैसेज जो है वो पूरे का पूरा बड़ा मैसेज ये बंद किया है KA के साथ। सो KA किसको पता है, सिर्फ एलिस को पता है। तो अगर KA पता होगी तभी ही ये इनर वाला मैसेज ओपन हो सकता है, नहीं तो ये वाला मैसेज ओपन नहीं कर सकता एलिस। सो एलिस ने क्या किया, KA उसको पता है, उसने ये सारा मैसेज ओपन किया और ये सारा पोर्शन तो अपने लिए रख लिया। इसका मतलब है कि उस कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट का रिप्लाई है और KS एलिस को पता चल गई बाय ओपनिंग दिस। अब ये वाला जो सेकंड पोर्शन ऑफ द मैसेज है वो एज सच उसने बॉब को सेंड किया, एलिस ने बॉब को सेंड किया। अब इसमें क्या है, सेम जो KDC ने भेजा था, बिकॉज एलिस कैन नॉट रीड दिस, कैन नॉट एनक्रिप्ट इट, सो उसने एज सच बॉब को भेज दिया। इसमें KB के साथ एनक्रिप्ट क्या क्या किया हुआ है, सेशन की जो कि KDC ने भेजी, और ID ऑफ A इसलिए भेजा ताकि बॉब को ये पता चल जाए कि अभी जिस ID से मुझे मैसेज आया है क्या ये वही ID है या डिफरेंट है। नाउ इन दिस केस बॉब, अगर बॉब के पास KB है तो बॉब विल ओपन दिस मैसेज। इस नोटेशन का मतलब क्या है, इसको पता करें। E इज एनक्रिप्शन फंक्शन, जो पहले लिखा है वो है की के बाद कॉमा के बाद जो लिखा है वो मैसेज है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज हेयर। यहाँ पे E ये K के साथ ये पूरे का पूरा बंद है मैसेज, क्लियर। इन दिस केस KB के साथ ये पूरे का पूरा मैसेज क्लोज्ड है, दैट मीन्स इनक्रिप्टेड है। तो डिक्रिप्ट होगा तो ये मिलेगा सेशन की एंड ID ऑफ A। तो A और B के पास, दोनों के पास अभी की मिल गई, इसको भी KS पता चल गई, इसको भी KS पता चल गई। नाउ दे विल चेक वेदर दैट KS एक्चुअली वर्क और नॉट। तो इन दैट केस B ने क्या किया, उसी KS के साथ एक nonce2, एक और रैंडम नंबर भेजा एनक्रिप्ट करके। किसके साथ एनक्रिप्ट किया, अब इन दिस केस एनक्रिप्टेड विद सेशन की। कौन सी सेशन की, जो अभी अभी KDC ने दोनों को दी है। इसने उसके साथ एक रैंडम नंबर को एनक्रिप्ट करके भेज दिया एलिस को। एलिस क्या करेगा, उस रैंडम नंबर पे कोई फंक्शन लगाएगा विच इज़ ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन, या तो उसको +1 कर सकता है, एनीथिंग। सो उस रैंडम नंबर पे एक फंक्शन लगा के उसी की के साथ बॉब को भेजेगा। तो अगर ये दोनों ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं, दैट मीन्स दे आर एबल टू टॉक विद दैट KS इन द फ्यूचर। इसके बाद फिर वो डेटा सेंड करेंगे, the actual data which Alice and Bob wants to share with each other. So this is how a KDC scenario works in this particular protocol. So in this case, again secret keys KA and KB are shared between Alice and Bob. अब KA जो है वो A and KDC के बीच में शेयर्ड है, KB जो है वो Bob and KDC के बीच में शेयर्ड है। Now the purpose of the protocol is to distribute securely a session की KS to A and B. पर्पस है कि हमने ये KS दोनों को सीक्रेटली बतानी है। इंट्रूडर भी ऑन द चैनल हो सकता है, तो हमने उसके भी इंट्रूडर को से छुपा के ये की शेयर करनी है। सेकेंड, सिक्योरली A, that means Alice,
securely acquires a new session key in step 2. In step 2, Alice will get that session key securely because that is encrypted with Alice key, so only Alice can understand it. Next is the message in step 3 can be decrypted and hence understood only by B. अब step 3 में जो मैसेज था वो सिर्फ बॉब को ही समझ में आने वाला था. Why? Because वो encrypted with बॉब एंड KDC's की, तो एलिस को भी नहीं पता है कि what is in that packet. So वो सिर्फ बॉब को समझ आने वाला है. तो step 4 reflects B's knowledge of KS. स्टेप 4 का मतलब है कि B इज़ एक्चुअली द बॉब नॉट द इंट्रूडर, बिकॉज बॉब ही वो की ओपन कर सकता है, इसलिए उस की को, जो की अभी अभी दोनों को पता चली है, उस की के साथ स्टेप 4 में वो एक रैंडम नंबर इनक्रिप्ट करके भेजता है एलिस को. दैट मीन्स अभी एलिस को पता चल गया कि ठीक है, बॉब हैज़ गॉट द एक्चुअल की. नाउ द पर्पस ऑफ स्टेप 4 and 5 is to prevent a certain type of replay attack. Now how it reflects the avoid the replay attack, because nonce is also used random number का मतलब है अगर इंट्रूडर ने ये वाला पैकेट को कैप्चर भी कर लिया तो अगर वो रिप्ले करेगा तो अगर उसने ये वाला कैप्चर कर लिया और रिप्ले करेगा तो एलिस ऑलरेडी नो दिस रैंडम नंबर, तो वो उस पैकेट को रिजेक्ट कर देगी. Second, in particular, if opponent is able to capture the message in step 3 and replay it, this might in some fashion disrupts operations at B. तो अगर opponent ने हमारा step number 3 वाला मैसेज को कैप्चर कर लिया, ये वाले मैसेज को, और ये रिप्ले करे, ये बाद में रिप्ले कर दिया उसने, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसलिए नॉन्स जो है वो उसको अवॉइड करता है. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस अप्रोच में. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये इसमें ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि सेंडर इज़ ए एंड रिसीवर इज़ बी, बट ये रिप्ले अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता. कौन से वाले रिप्ले अटैक? इंट्रूडर को अगर पुरानी कोई सेक्शन की उसने ब्रूट फोर्स अटैक के साथ कैप्चर कर ली, लेट्स से कोई बहुत पुरानी केएस थी. अब इस केस में उसने क्या किया, वही वाला पैकेट और जो कि एलिस ने बॉब को भेजा था वही वाला रिप्ले भी कर दिया. केएस भी उसको पता है, तो बॉब विल थिंक कि एलिस है जो बात करना चाहता है, बट ये केएस पहली वाली कोई केएस थी और वो पैकेट पहले वाला पैकेट था, तो इस वजह से ये रिप्ले अटैक से ब्रेक हो जाती है. बट अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं. लेटर ऑन दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टैम्प कि ठीक है, आपने जब मैसेज भेजना है तो टाइम लिख के भेजो. बट इन a distributed environment, as we have already discussed, कि timestamps are not very good method, and obviously in emails also, email process में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है तो वहाँ पे ये timestamps हेल्पफुल नहीं होती हैं, और रिप्ले अटैक से ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा सफ़र करता है. दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग KDC. In the next video we'll discuss the next approach, that is Kerberos, which is advancement of this. Thank you for watching the video. Please download the notes in the description bar.